ठीक है जी, आर यू सीइंग द स्क्रीन? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही साफ नजर आ रही है आपको? ठीक हो गया जी। देन वी बिल्कुल हैव गॉट इन अ ड्वेल टाइम के बारे में हमने बताया था कि whenever the call has been made up till that time, whenever you hand it over to the other base station, so the time elapsed in between is said to be a dwell time. फिर हमने dwell time देखा, it is dependent upon the different parameters, is a propagation, the interference, and a distance from the base station. We already discussed this. So this is not an infinite time. This is even a finite time for the stationary users as well. So the dwell time is there. So mobile assisted handover, if a mobile is initiated its handover procedure by itself is said to be mobile assisted. इसके अलावा जो दूसरा handover है वो हमने network assisted था. It means to be the BSc and MSc that is going to be assess the handover procedure and it will be initiate the handover procedures. तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. हैंड ओवर पॉलिसीज के अंदर हमने वी ऑलरेडी डिस्कस दैट whenever you move from one place to the other place, so what will be happened and the new pair of the channel will be assigned to the user. So it is just like be treated as an initial call, or it may have gotten a higher priority to the handover user because the operator want to be the user should be loyal to the company. So it gives a good priority to the handover as compared to the initial connection. So there are the different strategies for the handover. So the policy we already discussed this. Then we discussed already the cell dragging system. What do you mean by cell dragging? Means to be whenever you move from one cell to the other cell, enter into the other cell, your connection will not be still lost to the previous cell. And it is basically dragging your cell into the other cell, दूसरे cell के अंदर, or you are going to be extending your. उसका फिर एक सिनारियो जो हमने डिस्कस किया था कि let's suppose over here you see that if this is the base station A, we have got the base station B, and user is moving from that station, base station, and enter into the region of the other base station, so that it got in a good, still it doesn't have a good signal from the B, but it have got in a good signal from A. That would be the source of interference from the other core channel server, which is far away from that position. तो वो उसको interference there. So signal to interference ratio is going to be down there because of that cell dragging phenomena. और फिर मैंने हैंड ओवर बताया था that then we सर were discussing. जी जी वो RSSI जो आपने बताया था वो क्या होता है, जरा वो बता दें सर. रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर. रेडियो सर सिग्नल ये स्ट्रेंथ जी इंडिकेटर. जी 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 ये किस लिए होता है सर, ये उस टाइम समझ नहीं आई थी. अच्छा देखिए ना, जब आपके पास ये सेल ए है, सेल के ए के अंदर यू हैव गॉट द यूजर देयर, जी सर. तो आरएसएसआई से उसको पता लगता है कि मैं इस बेस स्टेशन से क्या सिग्नल पावर रिसीवर्स, रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये जो जी सर. आपके मोबाइल के ऊपर यू हैव गॉट इन अ बार्स देयर. So ठीक है basically, सर. this is representing that what quality of the signal, what the power of the signal is going to be received by your receiver. आपका मोबाइल कितना रिसीव कर रहा है, वो जो बार्स लगे होते हैं ना, इफ यू सी इन योर जी मोबाइल, सर. मोबाइल के अंदर, तो ये इंडिकेटर है बेसिकली, इज रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, कि आपको किस पावर का सिग्नल मिल रहा है. इज इट राइट? ठीक है सर, बिल्कुल. So what's happened whenever you move from one position to the other, so you are going to be covering the distance and your signal strength is now going to be decline. आपका signal strength कम होता जाएगा. आप बी के करीब पहुंचते हैं तो व्हाट्स हैपन कि आपको वहां से अच्छा सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है. So that is again is going to be identified with the RSSI की वजह से पता लगता है. So that the mobile is may have a capability that initiated the handover because of that RSSI. RSSI की वजह से वो समझना शुरू हो जाता है. So already we haven't discussed this 1 to 2 second handoff in the second generation in the GSM mobiles के अंदर थे, और डेल की वैल्यू जो है वो 0 to 6 dB है. 6 to 12 dB for the first mobile generations के लिए था. That was an AMP signal analog mobile phone systems के अंदर था, and the Dell was in between 6 and 12. So that was not much efficient. आपको 10 से up to 6 to 12 dB और तकरीबन आपको
10 seconds आपको hand off करने के, so there will be more probability that your call can be dropped there. Okay. Then we were discussing सर about मेरा क्वेश्चन है जी 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 बोलें। सर, जब हम एक बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब चैनल असाइन होता है ना सर। जी तो जी सर जब बिल्कुल। हम दूसरी बेस स्टेशन की तरफ जाते हैं तो हमें फिर वही फ्रीक्वेंसी या वही चैनल असाइन होता है या डिफरेंट? नहीं ना, आप देखें, हमने कहा था कि जो पहले कॉन्सेप्ट हमने बताया था, वी हैव गॉट इन अ क्लस्टर एंड ईच क्लस्टर इज कंपोज अपॉन द नंबर ऑफ द सेल्स। तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक क्लस्टर कहते हैं। जैसे हमने 7 सेल का क्लस्टर, कहीं पे ये फिगर आ गई जी। इफ यू सी दैट के ए बी सी डी ई एफ जी, ये लेटर्स इसलिए डिफरेंट किए गए हैं मसलन सेल ए के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, दैट फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी यूज इन बी। जी सर आपकी आवाज कट रही हेलो, है। आवाज कट रही है आपकी। सर क्या आपकी आवाज अभी कट सही रही है है सर, दरमियान में? आवाज कट रही है, ठीक है, अभी सही चलें है। खैर है, जो थोड़ी बहुत थोड़ी आया देर करे रुका तो है, उसको आप खैर है वो किया करें। जी जी अभी अब सही ठीक है, है, अभी ठीक है सर। ओके ठीक है जी। तो ए की फ्रीक्वेंसी बी सी डी ई एफ जी के अंदर नहीं इस्तेमाल होगी, बी की फ्रीक्वेंसी ए सी डी ई एफ और जी के अंदर नहीं इस्तेमाल होगी। सो every particular cell in a cluster will have a different frequency spectrum. Okay, so there are the allotment of the channels into these cells will be the different. तो अगर ए से बी के अंदर अगर पेनिट्रेट करता है एक यूजर, देन व्हाट विल हैपन दैट विल बी अलॉटेड विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बी के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है। सो इट विल बी गिवन अ डिफरेंट ओवर हियर। ठीक है जी। तो जब आपको नया वॉइस चैनल हैंड ऑफ के वक्त में जब एलोकेट होता है, व्हेनेवर इट इज एलोकेटेड देयर, देन व्हाट्स हैपन, इट मींस टू बी you are handover, and that kind of the handover is said to be hard handover. इसको हम hard handover कहते हैं। But let's suppose अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आप whenever you move from A to B and the new voice channel या नई फ्रीक्वेंसी आपको ना एलोकेट की गई हो, ना एलोकेशन हो, then what will happen? रहेगी हाँ, आपको सिर्फ आप इसको सेल, जी 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 मतलब इसी को सेल ड्रैगिंग कहते हैं ना, मतलब सर ये। सेल्फ नहीं सेल कंट्रोल ड्रैगिंग नहीं आपको कहते सर, ना, वो सेल सेल्फ ड्राइविंग सेल्फ कंट्रोल चेंज हो सेल जाता है वो ड्रैगिंग सब। को सेल ड्रैगिंग का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, राइट। सेल ड्रैगिंग तो ये कि यू आर गोइंग टू बी एक्सटेंडिंग द बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की जिस बाउंड्री जिस सेल के अंदर आप हैं, यू आर गोइंग टू बी एक्सटेंडिंग, यू आर गोइंग टू ड्रैग योर सेल्फ along with you because you are getting a very good signal, still getting a good signal from the सेल ए। सेल ए से आप बहुत अच्छा सिग्नल ले रहे थे और बी के अंदर इंटर होते भी आपको ए से ही अच्छा मिल रहा है और बी से अच्छा, दैट इज बिकॉज बी का जो बेस स्टेशन है और आपके दरमियान में कोई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो आप छुपे हुए हैं उसकी शेडोज के अंदर हैं, एंड देन यू आर नॉट गेटिंग अ गुड सिग्नल फ्रॉम बी। लेकिन ए के साथ आप स्टिल लाइन ऑफ साइट के ऊपर मौजूद हैं, सो दैट यू आर गेटिंग अ गुड, सो दिस इज साइड टू बी अ सेल ड्रैगिंग, वो डिफरेंट चीज है। बट whenever you move from A to B, so policy ये है कि you will be allocated a new pair of the voice channel. But if you are not getting that new pair of the voice channel and you are still operating onto the same frequency, आप same frequency पे you operate कर रहे हैं, policy ही ऐसी है, and only the control has been given to the new base station because you are Other getting base a very station. good signal from the Yes, sir. other base station. दूसरे तो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, आपको नया वॉइस चैनल नहीं एलोकेट हुआ, बस जस्ट यू हैव योर कंट्रोल इज नाउ विद द अदर बेस स्टेशन, दूसरे बेस स्टेशन के साथ आपका कंट्रोल आ गया। सही है जी। एंड दिस इज सेड टू बी ऐसा अगर जी जी सर इसमें तो फिर ये क्लस्टर वाला वो कंसेप्ट खत्म नहीं हो गया, क्योंकि हमने तो कहा था कि खत्म हो गया, क्लस्टरों में। हाँ ठीक है बिल्कुल, सर। उसमें क्लस्टर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एंड देन यू सी दैट कि ये वाली फिगर देखें तो हमारा सीडीएमए का कॉन्सेप्ट आ गया। सो एवरी सेल इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द एनी लेटर गिवन टू द एनी सेल, राइट। एवरी सेल इज नाउ ऑपरेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, सर ये सेम बताया सर फ्रीक्वेंसी के कि ये साथ फिर से operate। खत्म हो गया कंसेप्ट, सर ये बताइए सर ये देखिए ना, कि पहले तो हम कहते थे कि जब दूसरा सेल है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा होता है, ऐसे ही है ना ये क्लस्टर सर के अंदर, यानी ए की जी सर फ्रीक्वेंसी बी से डिफरेंट है। अब हम कह रहे हैं कि जब ए से बी में हम पेनिट्रेट करते हैं
तो हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, तो मतलब कि ए और बी की तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर तो वो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। देखिए सारे सेल की फिर एक जैसी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको फिर मैं राइट फिगर से आपको रिप्रेजेंट करना। सो एवरी सेल देयर इज नो क्लस्टर, यहाँ पे कोई क्लस्टर नहीं है, बल्कि क्लस्टर को आप कहें कि द क्लस्टर साइज इज 1, इट मींस टू बी एवरी सेल इज अ क्लस्टर, वो सेल भी है और क्लस्टर भी है, इज इट राइट? तो द क्लस्टर साइज इज इक्वल टू 1, अगर n कैपिटल N 1 के बराबर हो जाए, सो इट मींस टू बी, इसका मतलब ये है कि आप CDMA सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर 2.5G या 3G आप इसको कहते हैं, सो इट्स सेड टू बी अ CDMA सिस्टम दैट इज यूज्ड ओवर देयर। सो इन CDMA सिस्टम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं हो रही यहाँ पे CDMA के अंदर, या कोई टाइम डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होता है कि कोड की डिवीजन हो रही है। सो फ्रीक्वेंसी, एवरी फ्रीक्वेंसी इज एलोकेटेड, एवरी वॉइस चैनल इज एलोकेटेड विद अ यूनिक कोड। तो आप फ्रीक्वेंसी को वही कैरी करते हैं, बट योर कोड इज डिफरेंट, आपका कोड डिफरेंट होता है उसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जरा सा समझ लें, जिस तरह कि मैंने एक पहले शायद मिसाल आपको दी थी क्लास के अंदर या नहीं दी थी, जैसे लेट्स सपोज कि आपकी एक दुकान के अंदर शर्ट्स हैं, and these are 100 shirts and every shirt having the same size and have got the same color, is it right? And the same quality, सारी चीजें उसमें। तो आप कैसे पता लगेगा कि ये शर्ट कौन सी शर्ट है? ऐसा कोई हो सकता है क्या? इफ यू हाउ कैन यू कम टू नो दैट कि every cell have got every shirt have got a unique identity? क्या करेंगे आप इसके साथ? Anybody? सर उस पे नंबर लगाएंगे, नंबर उस से पे पता नंबर चलेगा। लगा दें, सो नंबर, सो you can tag that every shirt, is it right? So every voice channel have gotten the same frequency, तो हर एक यूजर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम इसको एक टैग लगा दें, every user is given with the same with a different tag. So if a different tag, so it's a differentiating element has been introduced into the user identity. User identity में अंदर आपने identification डाल दी, so that it carries the same frequency but have gotten a different code. उसका code different है, so that it is moved from one cell to the other cell. The frequency will not be changed, but the code is unique for that, so that it is distinguishable with the other. तो इसलिए वो इंटरफेरेंस का भी अमल जो है वो उसमें खत्म हो जाता है। सो दैट कोड बेसिकली एलोकेटेड बाय द एमएससी इसको चूंकि एलोकेट कर रहा है, एंड ऑल द बीएससीज आर अटैच्ड विद द एमएससी, सारे बीएससीज चूंकि एमएससी के साथ अटैच हैं, so that फ्रीक्वेंसी की कोई चेंज भी नहीं हो रही है वहां पे, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बट ओनली व्हाट्स हैपन, द यूनिक कोड हैज बीन असाइंड टू द यूजर को असाइन कर दिया गया है। तो आपको सॉफ्ट हैंड ऑफ एंड हार्ड हैंड ऑफ के दरमियान में डिफरेंस पता लग गया। सो अगर हम सर ये इसके भी सीडीएमए है सर के डिफरेंट कोड एलोकेट की जाती है यूजर हर एक सेल को के इसकी डिफरेंट टैग्स है, हर ये एक सीडीएमए है। यूजर को हर एक सेल को नहीं, हर एक यूजर को जब वो कनेक्ट होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, एंड ऑल द यूजर हैव गॉटन अ सेम फ्रीक्वेंसी, सारे यूजर की एक जैसी ही फ्रीक्वेंसी होती है। ओके सर। लेकिन दीज आर डिफरेंशियल, अब अगर सबकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी हो तो वो तो इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर डिस्टिंग्विश नहीं हो सकेंगे ना। सो हाउ कैन यू एक्सेप्ट योर इन्फॉर्मेशन? तो हम क्या करते हैं कि एक कोड, जैसे मैंने शर्ट्स की मिसाल दी कि उसके ऊपर नंबर लगा दी, तो फिर हम हर एक शर्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये शर्ट नंबर 1 है, ये शर्ट नंबर। तो हर एक अगर यूजर को हमने एक टैग असाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द कोड, जो कि एमएससी जो है वो एलोकेट करता है, सो दैट the users can be identified with that different codes. आगे जाके जब हम CDMA सिस्टम को बड़े थॉरली पढ़ेंगे, so you will come to know that ये कोड कैसे असाइन होते हैं and how it works, right? तो अगर हम इस स्लाइड को जरा सा देख लें, channelized wireless systems such as GSM have to switch channel in the process of handoff. GSM के अंदर हार्ड हैंड ऑफ होता था सेकंड जनरेशन के अंदर, 2G के अंदर, सेकंड जनरेशन की मोबाइल्स के अंदर, तो GSM होता था, एंड दैट इज बेसिकली हार्ड हैंड ऑफ बेस्ड था, TDMA सिस्टम था। देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ लूजिंग द कनेक्शन। आप जब भी आप जो है वो इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट यू आर गोइंग, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी वॉइस चैनल देना पड़ता था, सो वॉइस चैनल देने के लिए कुछ ज्यादा ड्यूरेशन, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कि आपका प्रोसेस इट विल टेक अ मोर टाइम
that your connection may be lost in that case. लेकिन वो कम होता है, लेकिन there is a more probability that your connection will be, so the risk will be here is more. IS 95 is interior standard 95 and code division multiple axis CDMA system is a European system. IS 95 is the American system that provides a soft handoff is a CDMA based है, चूंकि code आपका सिर्फ control जो है that is going to be shifted to the other base station. No new channel has been assigned to the user during the handoff, so that is kind of said to be soft handoffs. Soft handoff does not mean changing the channel, but rather deciding which base station will handle the connection. सिर्फ ये वो देखता है कि कौन सा बेस स्टेशन जो है वो कनेक्शन को हैंडल करेगा. ओनली दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सीडीएमए कॉन्सेप्ट. इज इट राइट? ठीक हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल. सर जैसा आपने कहा ना कि फ्रीक्वेंसी सर इसमें चेंज नहीं होता, तो पर इसमें फिर सर हम बस एक ही फ्रीक्वेंसी ले और उसके साथ कोड असाइन करें तो बैंडविड्थ बहुत कम फिर इसको रिक्वायर होगी सर, या इसका कांसेप्ट कुछ और है सर? सर ये फ्रीक्वेंसी, ये मैं भी पूछ रहा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहेगी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे ये कैसे काम करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ आपको. लेट्स सपोज के 5 मेगाहर्ट्ज का बैंड हैज बीन परचेज बाय द ऑपरेटर ने 5 मेगाहर्ट्ज का बैंड परचेज किया हुआ है. एक तो तरीका यह है कि 4 किलोहर्ट्ज के आप बैंड्स बनाएं, ठीक है. और आपने या चलें आप, मैं जरा सा राउंड फिगर के अंदर ले लेता हूँ. आई से टू बी चलें 5 मेगाहर्ट्ज है. 5 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि 4 मेगाहर्ट्ज है, तो 4 मेगाहर्ट्ज में अगर आप 4 किलो के चैनल बनाए तो टोटल 1000 चैनल बनेंगे. वॉइस 1000 चैनल बनेंगे. और चले 50 जो है वो अपलिंक के लिए हो गए, 50 जो है वो डाउनलिंक के लिए हो गए. तो टोटल एक यूजर को एलोकेट करने में आपके 8 किलोहर्ट्ज का चैनल लगता है. तो टोटल आपके पास 50 चैनल्स हो गए, ठीक है. अब ये हम नहीं समझते सर, ये तो नहीं समझते. शुरू से बताएं सर, बिल्कुल समझ गए. अच्छा चलें ठीक है, जरा सा इसको गौर से देखें, ठीक है. मैं जो कह रहा हूँ आप लिख लें, साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतना वो नहीं है. ठीक है सर. आप लिखें इफ यू हैव गॉट टोटल ऑफ द 4 मेगाहर्ट्ज का बैंड है. टोटल बैंड आपके पास कितना है? 4 मेगाहर्ट्ज. ठीक हो गया. आउट ऑफ दैट 4 मेगाहर्ट्ज इफ लेट्स सपोज, ये सारी assumptions हैं, राइट. मैं ये कोई सिस्टम के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन कर रहा आप लोगों को. दिस इज साइड टू बी assumption just to understand that particular phenomena, okay. And you have got 4 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है, अपलिंक या डाउनलिंक. एक चैनल कितना? 4 किलोहर्ट्ज का. तो अपलिंक और डाउनलिंक के लिए दोनों के लिए 8 किलोहर्ट्ज के चैनल लगेंगे. दोनों अगर मिला के एक यूजर को दिया जाए, पेयर दिया जाता है ना, so that will be a total of the 8 kilohertz channel. 8 kilohertz channel has been allocated, voice channel allocated to the one user. Is it यार? तो अगर आप 4 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करें, 4 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करें 8 किलोहर्ट्ज पे, तो क्या आंसर आता है? 8 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 8 किलोहर्ट्ज. जी सर ये 4 megahertz divided by 2000 4 megahertz divided by 8 kilohertz. जी सर 1000. how many? 500 sir. 2000. 1000 नहीं आएगा. 2000 sir. 2000 sir. 4000 kilohertz. 4000 kilohertz divided by 8 kilohertz. जी Yes sir. 500. 500 hertz. सर 500 राजी सर. 5000 ये 500. यार तासुदा कैलकुलेशन हमने शुरू बोले यार, अब कैलकुलेटर सड़े हो की कहना यार. 2000 sir. जी how many? सर ये 0.5 किलो आता ये है ना. 4 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 8 किलोहर्ट्ज ना. 4000 kilohertz divided by 8 kilohertz. It's 500.
So 500 channels available channels hai. There are 500 channels. If that 500 channels divided among the cluster, सारे cluster, चलिए मैं जरा से इसको राउंड फिगर में ले लेता हूँ. चलिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चैनल है 400 है, and we have got total number of cells in a cluster is 4. अगर हमारे पास 4 है, so 100 channel will be allocated to a one cell. एक सेल को 100 चैनल ही असाइन होंगे. ठीक है जी. तो दैट वुड बी डिफरेंट. तो ये आपके पास हर एक सेल के अंदर 100 channels will be allocated, and all the channels will be different in a cluster, and that will be then again repeated and repeated. वो दोबारा से रिपीट होंगे. ऐसी बात है. लेकिन CDMA के अंदर तो इसका मतलब है कि एक यूजर को 8 किलोहर्ट्ज का चैनल दिया जाता है. ये दूसरी सेकंड जनरेशन के JSM के अंदर हर एक यूजर को 8 किलोहर्ट्ज का चैनल दिया जाएगा. लेकिन CDMA में ऐसा नहीं है. CDMA के अंदर अगर ये 4 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, that will be allocated entirely to a single user. सिंगल यूजर को सारा का सारा बैंड दे दिया. जो कि हमने वहां डिवीजन की थी, यहाँ पे सिंगल यूजर को ये सारा का सारा बैंड दे दिया जाता है. सो इट्स अ वेरी बिग बैंड हैज बीन एलोकेटेड टू द यूजर को दे दिया. बैंड जितना बड़ा होगा इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो क्या होगा, द स्पीड विल बी मच मोर फास्ट. अगर एक यूजर को मैं पहले 4 किलोहर्ट्ज का बैंड देता था, 4 किलोहर्ट्ज का बैंड देता था, उसकी स्पीड में वो 4 मेगाहर्ट्ज के बैंड की स्पीड में जमीन और आसमान का फर्क हो. सो दैट इज द डेटा रेट हैज बीन इनॉर्मसली इंक्रीज्ड. अब ये है कि सारा का सारा बैंड अगर एक यूजर को दे दिया तो दूसरे को क्या देंगे, दूसरे को भी यही देंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसीज, so that every user will enhance its speed. अपनी स्पीड को enhance कर देगा, enhance हो जाएगी उसकी स्पीड, because the frequency and time domain have an inverse relation. So your width of the bit is now going to be enormously reduced. वो reduce हो जाएगी, so that the speed of the system is much faster. तो आपकी जो speed है, data rate है, वो काफी faster हो जाएगा with the same frequency, उसी frequency के इस्तेमाल से. हाँ, लेकिन अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हर एक यूजर को एक यूनिक कोड दिया जाएगा, and that code is said to be a CDMA. It's a code division multiple access. So every user will give and last access with the code के साथ दिया जाएगा, and that will be differentiated with one another. एक दूसरे वो कोड के ऊपर फिर हम डिटेल से बात करेंगे. That would be much clearer whenever you go through the CDMA का जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, CDMA की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पढ़ेंगे, you will come to know that कि ये कैसे होता है. ठीक है जी. So for the time being you just understand. कैपेसिटी तो फिर बहुत कम होगी ना इसमें? बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. नंबर 1 क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें, हम कहते थे कि जितना आपका क्लस्टर साइज बढ़ेगा आपकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज यू डू रिपीटेशन फ्रॉम फार डिस्टेंस. दूर जाके आपने रिपीट करनी होगी अपनी फ्रीक्वेंसी को. लेकिन CDMA में आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते ही आप फिर वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं. इट मीन्स टू बी देयर इज बड़ी जल्दी आप रिप्लिकेट कर रहे हैं. सो देयर विल बी enormous increase into the frequency. दूसरा ये कि आप तो बड़ा बैंड तो दे रहे हैं, लेकिन उस बैंड को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर रहे हैं ना. हर एक यूजर वही बैंड इस्तेमाल कर रहा है, इज इट राइट? और वो कोड से डिफरेंट है, सो वी कैन एडजस्ट इन मच मोर नंबर ऑफ द यूजर इन दैट फ्रीक्वेंसी बैंड. ओके, ठीक है. अच्छा, ये थोड़ा सी फिगर आप देख लें थोड़ा सा ये समझाने के लिए. व्हाट्स हैपन, let's suppose we have some picocells in a building. A and B is said to be the picocell. So in the first floor I installed the cellular structure in a building. कोई सेंटोरस की एक बिल्डिंग है, उसकी अंदर जो है वो वायरलेस ये मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं. तो एक फ्लोर के ऊपर हमने जो है ना सेट ऑफ ए फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर ली, दूसरे फ्लोर के ऊपर सेट ऑफ बी फ्रीक्वेंसी. तो ए और बी जो है वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए. ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 2G की टेक्नोलॉजी. इसी तरह कोई दूसरी बिल्डिंग है, उसके अंदर ए और बी, उसमें भी डिफरेंट आपकी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए. एक आपने अम्ब्रेला सेल लगाया हुआ है, सो अम्ब्रेला सेल मस्ट हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू दीज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर ये डिफरेंट नहीं होंगी सो दैट विल बी इंटरफेयर. तो इधर ए नहीं लिखना चाहिए मुझे, दिस शुड नॉट बी ए,
या इधर C लिख दें, so that the umbrella cell what is going to be generating the frequency should not be interfere with these frequencies. So इसके अंदर भी we have got a hard and off होंगे. CDMA system के अंदर जो हमें कुछ थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है, we are going to be discussing this. अच्छा जी, everybody is with me है ना, सब मेरे साथ हैं एंड Yes, sir, बिल्कुल। ठीक है जी. Okay, whenever you transmit a signal, it will not only come from the only a single path. किसी single path से हमें नहीं मिलता. It is वो जगह जगह से टकरा के हमें सिग्नल एक कंपोजिट सिग्नल मिलता है. It means to be the signal is coming from one path, from the other part, from the other part, and will be accumulated at the receiver. Receiver के ऊपर होगा. अगर वो डिफरेंट पाथ से आएगा, अगर सिग्नल एक ही सिग्नल डिफरेंट, क्योंकि स्कैटरिंग इफेक्ट है, द ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस के अंदर वो प्रोपेगेट कर रही होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पाथ से ही रिसीवर को यानी कि मोबाइल को सिग्नल, इट मे हैव रिसीव अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज को रिसीव कर रहा है, व्हिच इज रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट पाथ्स. If a signal, the same signal is propagating from the different paths, so it will cover a different distances as well. तो वो distance भी different cover करेंगे. आपको आवाज आ रही है सबको? Yes, sir, yes sir Yes. ठीक है. सर आवाज आ रही है सर, माउस के जरिए सर भी समझा रही है कर रहे थे. ठीक है जी. तो आपका distance भी different cover हो रहा होता है. Is it right? अब देखें, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सिग्नल कम अराइव फ्रॉम जीरो, मैंने ये टाइम जीरो पे ऊपर यहां से अराइव्ड हो रहा है, आपको पॉइंटर नजर आ रहा है, एंड इट इज दैट सिग्नल, द सिग्नल इज कंप्लीटेड हियर. लेकिन उसी सिग्नल का जो कॉपी है वो आ रही है किसी और जगह से टकरा कर, क्योंकि वो डिफरेंट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो जरा ज्यादा डिले के साथ पहुंचेगी. यू सी दैट कि इसके और इसके डिले के दरमियान में फर्क है. सो द सेम सिग्नल इज गोइंग टू बी रिसीव आफ्टर सम डिले, यहाँ कुछ डिले के साथ होके पहुंच गई वही सिग्नल. वो उसी सिग्नल एक और पाथ से होते हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे. इट मीन्स टू बी द सेम सिग्नल इज रिसीव्ड एट द रिसीवर with a different number of copies has been received. आपके पास different number of copies received. अब ये जब ऐड होंगे सारे उधर, तो आपका तो ओरिजिनल सिग्नल की शेप तो खराब हो जाएगी, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. बल्कि आप ये देखें, ये जो थर्ड वाला आया है, जो आखिरी वाला सिग्नल आया है, और जो पहला वाला आया है, वो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिवली एडेड होंगे. वो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है. So that whenever these are added together, so means to be your signal will be vanishingly small. Your signal will be lost here, completely lost here in that region. So this is said to be multipath effect. So the phenomena is said to be a multipath effect. ये तो हर मोबाइल के अंदर भी होता है, मतलब जो भी आपकी जनरेशन है, 1G है, 2G है या 3G है. CDMA के अंदर खसूसियत ये है कि हम जो आखिरी वाला सिग्नल रिसीव्ड हुआ है, आखिरी वाला सिंबल, उस तक पहले वाले को सेव रखते हैं, स्टोर रखते हैं, उसको डिले करते हैं कि वो यहां पहुंच जाए. तो पहला वाले को हम इधर ले आए जी, इफ यू सी दैट, उसको डिले किया. दूसरे वाले को भी डिले इतना किया कि वो थर्ड वाले की इनिशियल पोजीशन पे आ जाए. सो यू सी दैट ऑल मल्टीपाथ्स आर अलाइन्ड नाउ, वो सारे अब अलाइंड हो गए. एंड दिस फिनोमिना, डूइंग दिस, इसको करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं रेक रिसीवर. रेक लोग कैपिटल लफ्ज से भी लिखते हैं, RAKE, शायद वो समझते हैं कि ये कोई एब्रीवेशन है. दिस इज नॉट एन एब्रीवेशन. रेक इज रेक. रेक का मतलब है कि आपने वो घास काटने वाली मशीन देखी होगी, उसके आगे एक फावड़ा लगा होता है जिसमें कि घास जमा हो रही होती है. सो रेक उसको कहते हैं. इट मीन्स टू बी द मल्टीपाथ्स आर गोइंग टू बी कलेक्टिंग एट दैट रिसीवर. इस रिसीवर पे कलेक्ट हो रही हैं. सो दैट दिस इज सेड टू बी अ रेक रिसीवर. सो ऑल द सिग्नल्स जितने भी इसकी कॉपीज आई हैं विल बी कंस्ट्रक्टिवली देन एडेड, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन और टाइमिंग्स एक जैसी हो गई.
so that all the constructively added and very good power is now going to be received. तो आपको सारा constructively add हो गए ये एक सिग्नल मिल जाता है at the receiver. Is it right? अच्छा, सर लेकिन ओरिजिनल सिग्नल से सर इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं होगी फिर इसकी जी सर तो अच्छी बात है ना, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो, वैसे होगी नहीं, लेकिन जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है वो तो रेडिएट हुआ था आपका एंटीना से, और एंटीना ने ओमनी डायरेक्शन तो स्कैटर कर दिया था उसकी पावर को। तो अगर 3-4 में जितनी भी पावर आ रही है तो वो सारी कंस्ट्रक्टिवली ऐड होके वो एंटीना ने जो सारी रेडिएट की थी उतनी तो फिर भी नहीं मिलेगी ना रिसीव पावर जो ट्रांसमिट हुई थी। तो ये जो छोटी छोटी पावर्स जो कि इस मल्टीपाथ से मिली हैं तो वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड होकर आपको कंसिडरेबली बड़ी अच्छी पावर रिसीव हो जाएगी एट दी मोबाइल स्टेशन, एंड दैट विल बी दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट पहले रेक रिसीवर का जो प्रेजेंट किया था वो एक पेपर के अंदर प्रेजेंट किया था जिसका जो टाइटल था वो ये था कि मल्टी पाथ्स आर आवर फ्रेंड्स। मल्टी पाथ्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो एक पेपर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया एंड दैट फिनोमिना। उसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, one multipart is received as an R1, the other is R2, the other is R3. R3 तो ये वो आखिरी वाला मल्टीपाथ है, ये वाला, ठीक है। वो तो डायरेक्ट हमने समेशन को दे दिया। जो इससे पहले आया हुआ था सेकंड मल्टीपाथ ये वाला, उसको हमने डिले दे दिया। हमने कहा लेट्स सपोज 1 माइक्रोसेकंड का डिले है, सो उसको एक डिले सर्किट लगा के उसको डिले करके समेशन को दे दिया। और जो पहला वाला है उसको डबल डिले 1 माइक्रोसेकंड और 1 माइक्रोसेकंड का डिले दे के समेशन ने जब इसको सम अप किया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने, सो इट इज नाउ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे एक हमें कंपोजिट सिग्नल मिल जाता है। जी, कौन क्वेश्चन कर रहा था जी? सर मैं ये डिलेज के बारे में पूछ रहा था। डिले तो बिल्कुल अलग अलग होंगे ना हर सिग्नल के लिए, तो उसे किस तरह हम लोग करेंगे? देखें वो तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, राइट? तो उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट और कैलिब्रेशंस की गई हैं, ठीक है। तो वो उसकी एक अलग डिटेल है। सो जब कभी अभी मौका मिला तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिले सर्किट्स होते हैं जो कि डिले करते हैं, ठीक है जी। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज दिस। आपको सिर्फ ये बता रहा था दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीडीएमए सिस्टम। सीडीएमए सिस्टम की ये एक खसूसियत है। Is it right? So we have got this. So pictorially, we are going to be illustrate over there is CDMA frequency reuse pattern. We have in a cluster over there the CDMA independent upon the cluster. You can say that the cluster size in CDMA के जो cluster size है that is equal to 1. वो 1 के बराबर है. It means to be 100% capacity is now going to be achieve by using a CDMA. ये क्लस्टर साइज जितना बढ़ाएगा, जितना बढ़ता जाएगा तो आपकी क्वालिटी तो अच्छी होगी, बट योर कैपेसिटी इज नाउ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ये क्लस्टर साइज जितना कम हुआ, 7 से 4 हुआ, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब 1 हो गया, सो मीन्स टू बी 100% कैपेसिटी वी आर गोइंग टू बी अचीव बाय यूजिंग द CDMA सिस्टम। ठीक है जी। ओके, नाउ co-channel interference. Anybody can define co-channel interference? A cell can give an interference to the A cell. Yes sir. So this is said to be co-channel interference. उसको हम co-channel interference कहते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह के इस फिगर के अंदर if you have got A and A, so the mobile station over here can produce an interference to the other A cell. वो B, C, D, E को नहीं दे सकते, वो A को ही interfere because they are operating onto the same frequencies. वो same frequencies के लिए operate हो रही हैं। तो that will give है। इसी तरह B को interfere कर सकता है, B को interfere, लेकिन चूंकि ये distance में काफी दूर पड़े होते हैं तो उसके interference का effect बहुत कम होता है। लेकिन B सिर्फ B को ही दे सकता है इंटरफेरेंस, D को ही दे सकता है, C को ही। सो ऐसी इंटरफेरेंस, ये जो A और A, these are said to be co-channel cells, इनको हम co-channel cells कहते हैं। And the interference come from this A to this A is said to be co-channel interference, उसको हम co-channel interference कहते हैं। Okay, so
Unlike a thermal noise, this cannot be overcome by increasing the signal power. Thermal noise को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थर्मल नॉइज के बारे में बताया था आप लोगों को? जी सर, आपने बताया था कि ये एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है दैट प्रोड्यूस बेसिकली इनटू द रिसीवर, आपके मोबाइल सेट के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इफ यू सी दैट अनलाइक थर्मल नॉइज दिस कैन नॉट बी ओवरकम, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग द सिग्नल पावर, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो। मसलन आपने सिग्नल पावर डिवाइड बाय इंटरफेरेंस पावर, अगर सिग्नल पावर आप बढ़ा दें, मसलन इफ यू सी दैट कि यहाँ एक यूजर है, उस यूजर को इस ए से इंटरफेरेंस मिल रही है और इस ए से भी इंटरफेरेंस मिल रही है। अगर आप कहें कि मैं इस यूजर की अब सिग्नल टू इंटरफेरेंस पावर को ज्यादा, यानी सिग्नल पावर डिवाइड बाय इंटरफेरेंस पावर फ्रॉम दीज स्टेशंस, तो अगर मैं SIR सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशन को बढ़ाना चाहूँ, यानी सिग्नल पावर डिवाइड बाय द इंटरफेरेंस पावर, तो क्या होगा? सिग्नल पावर को बढ़ाई तो क्या हुआ कि इसने इसको ज्यादा इंटरफेयर, क्योंकि इंटरफेरेंस भी तो ज्यादा हो गई दूसरे को, तो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट जस्ट लाइक इन थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज की तरह हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है जी। जो हमारा एडिटर वाइट गॉसियन नॉइज है, आई थिंक शायद आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, लेकिन इसको हम बार बार एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसको हम बार बार एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो आप समझ जाएं कि थर्मल नॉइज की तरह हम इस पे ओवरकम नहीं कर सकते। थर्मल नॉइज पे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? AWGN, एडिटर वाइट गॉसियन नॉइज, बताया था AWGN के बारे में? हाँ सर। हाँ ये नहीं सब सर, नहीं बताया बताया था आपने। नहीं वो बताया? एक सिर्फ नहीं बताया था सर आपने। चलें ठीक है, वो कोई उस मसला नहीं है। सर वो थर्मल नॉइज जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने बताया था कि वो जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलें वो आगे आते रहेंगे। जगह जगह नॉइस को तो बहुत दफा मैंने एक्सप्लोर करना है आप लोगों को। तो थर्मल नॉइस को हम कम कर सकते हैं अगर आपके पास हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो। मसलन अगर आप कहते हैं सैमसंग मोबाइल है और उसके साथ आप क्यू मोबाइल करते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द फिल्टर्स क्वालिटी इन दैट काइंड ऑफ द मोबाइल्स, वो होती है। सो दैट थर्मल नॉइस जो होगी वो अच्छे मोबाइल की, जिसमें अच्छे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होंगे, it will have a lesser thermal noise as compared to the low quality mobiles, ठीक है जी। The core channel says must be physically separated, so we already discussed this कि A और A physically separated होने चाहिए। कितनी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए इनके दरम्यान में? 2R prime. हाँ, that's fine, it's said to be आपके पास 4R प्राइम के बराबर इसका एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक हो। कोर चैनल इंटरफेयर 2R प्राइम सर। 2R प्राइम, ठीक है जी, बिल्कुल। सर हमने 4 प्राइम। एटलीस्ट 1 डायमीटर के मुताबिक होना चाहिए, एटलीस्ट इक्वल टू 1 डायमीटर, ओके। Okay, then we have now co-channel interference. Because the cell size is same, the co-channel interference is independent upon a transmitting power. सेल चूंकि सेम है तो ट्रांसमिटिंग पावर जो है वो उससे इंडिपेंडेंट है। आगे जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट डज इट मीन टू बी। इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ सेल R and the distance of the center to the nearest channel cell D. For hexagonal joint Q को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, is D divided by R is equal to 3n under the root। ये पढ़ा हुआ है हमने जी, इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ है। Yes, sir. इसको हमने प्रूफ भी किया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ किया था। by using the parameters I and J। I and J से हमने इसका क्वालिटी फैक्टर को हमने प्रूव किया हुआ है। सो विल कम टू नो दैट। इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नाउ नोटिस दैट
noise. Noise is actually is a function of the therm, temperature T. Noise is directly proportional to the temperature. Temperature के साथ वो directly proportional. Is it right? Temperature बढ़ेगा, noise बढ़ेगी. And that is at the receiver side. And that lie at all frequencies. सारी frequencies के ऊपर. अगर आप 1 gigahertz की frequency इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी ये noise produce होगी. और अगर आप 1 hertz की frequency use कर रहे हैं, तो तब भी ये noise produce होगी. Is it right? So that will be at all frequencies. सारी frequencies के ऊपर मौजूद होगी. So noise is directly proportional to the temperature. और noise is equal to KT के बराबर हो जाएगा. KT is a proportionality constant and it is said to be Boltzmann constant. इसको हम Boltzmann constant कहते हैं. Is it right? अगर मैं bandwidth को भी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी किस bandwidth के अंदर, मतलब अगर आप GSM सिस्टम है, GSM सिस्टम, तो यूजर को क्या bandwidth दी जाती है GSM के अंदर? What is the bandwidth allocated to the user in GSM system? Second G के अंदर. सर 900 मेगाहर्ट्ज के The bandwidth, वो तो central frequency है ना, जी जी सर. uplink और downlink के लिए. But what bandwidth is allocated to the single user? एक user को bandwidth कितनी allocate की जाती है? That is a 200 kilohertz. The 200 kilohertz bandwidth is allocated to the user in GSM system. GSM के अंदर इस्तेमाल होती है. So that 2 kilohertz के बैंड के अंदर जितनी नॉइस होगी हम उसी को देखेंगे. Is it right? तो इसलिए मैंने B का फैक्टर इस्तेमाल कर दिया. अगर GSM होगा तो ये B कितना होगा? 200 किलोहर्ट्ज. हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये ना किया जाए न्यूमेरिकल के अंदर कि GSM सिस्टम के अंदर ये चीजें हैं और फिर आपने, तो फिर आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए है कि GSM के अंदर ये जो B है, बैंडविड्थ है, दैट इज एन इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज के बराबर होता है. One of the factor is said to be a noise figure. The noise figure is in between 1 to 10 होती है, 1 to 10 होती है. For instance, हम कहते हैं कि ये नॉइस फिगर के बारे में आपको बताया था मैंने पहले जी. नो सर. बताया है यार. Noise figure is basically give you the reference there. For instance, आप का रूम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस वक्त तो आपका मोबाइल हीट अप होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, और कहीं पे आपका जो रूम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. देन व्हाट्स हैपन, योर मोबाइल विल एक्ट एज एन डिफरेंट बिहेवियर. उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा उसकी टेम्परेचर, तो आपको कोई रूम टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा. सो दैट वुड बी द रेफरेंस देयर. सो द नॉइज फिगर इज सीधा ये एक नंबर फैक्टर है, एक नंबर है. ठीक है, 1 से 10 के दरमियान में लाई करता है. अगर 10 होगा देन नॉइज फिगर विल बी द मैक्सिमम, यानी जितना हो सकता है. और अगर ये 1 होगा तो मतलब नॉइज फिगर का कोई इफेक्ट नहीं है. इट मींस टू बी, सो दिस इज सेड टू बी द रेफरेंस. ये आपके पास एक रेफरेंस डिपेंड अपॉन द रूम टेम्परेचर के ऊपर. तो ये जो नॉइज फिगर है ये 1 से 10 लीनियर के अंदर मौजूद होता है. लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाए कि नॉइज फिगर इज इक्वल टू 6 dB है, देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट 6 dB इनटू लीनियर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है. हाउ यू विल कन्वर्ट दैट? कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन है, इधर तो आप डीबी की वैल्यू नहीं डाल सकते. 6 dB को यहां नहीं पुट कर सकते, because this is a linear equation. This is not a logarithmic equation. कि कोई logarithmic equation नहीं है. So you need to convert that 6 dB into specific value in linear के अंदर. So you need to convert this. जी जी आपकी आवाज नहीं आई सही मुझे. ये कह रहा है इसके लिए एंटी लॉग ले सकते हैं. नहीं, मैंने एक फार्मूला बड़ा आसान सा लीनियर का बताया था आपको. 10 power of 6 dB divided by 10. 10 power of 6 divided by 10. So 10 power of 0.6 actually. That is an equal to 4. So F will then be equal to 4. You just have to put it over there. आपको put कर देना चाहिए. ठीक है जी.
अब ये मैं एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं कि आपके पास बैंडविड्थ है, लेट्स सपोज 1 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है. So you are going to find out signal to noise ratio. Signal to noise ratio को find out करना चाहते हैं. Signal power आपको बताती कि ये 1 milliwatt है. The received signal at the receiver is said to be, यानी आपके मोबाइल पे इतनी पावर रिसीव हो रही है, that is a 1 milliwatt की पावर. और नीचे आपके पास है noise. Noise is now going to be calculated from here. K is the Boardman constant, is 1.38 into 10 power of minus 23. ये K है. B is 200 kilohertz है. Is noise figure is 6 dB, तो 4 डाल दें. And T is equal to रूम टेम्परेचर. ये कोई टेम्परेचर दे दिया जाएगा. You need to convert it into the Kelvin. मसलन आपको कहा गया है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड है. So you just have to convert it into Kelvin. तो 27 है. तो अगर 27 डिग्री है तो you just have 273 plus 27. So it will give you a 300 degree Kelvin. You just have to be put over here, find that, and और हमने ये let's suppose find किया is 10 power of minus 10 milliwatts. So signal to noise ratio is 10 power of 10. दूसरा तरीका ये है. K की वैल्यू क्या है सर आपने बताया? K की K वैल्यू is 1.38 into 10 power of minus 23. Boltzmann constant. ये आप नेट से भी सर्च कर लें. हो सकता है कि मुझसे गलती हो. तो you just have to find out that Boltzmann constant. ये हम FEC में भी पढ़ते रहे हैं, मैट्रिक में भी शायद हम इसको पढ़ते हैं. So we have got this. Signal to noise ratio is then is equal to 10 power of 10 के बराबर है. 10 power of 10. ठीक है जी. अगर हम इसको dBs के अंदर देखें, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर. एस क्या है? सिग्नल पावर है जो रिसीव्ड हो रहा है, और जो नॉइस जो कि आपका मोबाइल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज सेड टू बी नॉइस. उसको हमने कैलकुलेट किया. SNR can be written in logarithmic scale is said to be S in dBm minus N in dBm. तो 1 मिलीवाट dBm किसके बराबर होता है? 1 मिलीवाट. देखिए ये चीजें मैंने डीबीज के ऊपर आप लोगों को कोई लेक्चर दिया है क्लास के दौरान? बिल्कुल सर, एक दफा किया था. दिया है ना. तो उसमें फिर मैंने कन्वर्जन्स भी आपको बताई हैं. तो ये डीबीज और डीबीएम को आप बिल्कुल इस तरह सीख लें जिस तरह कि आप डेसिमल नंबर्स को सीखते हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है जी. तो 1 मिलीवाट से बनेगा 0 डीबीएम, और 10 पावर ऑफ 10, ये 10 पावर ऑफ माइनस 10 milliwatt is minus 100 dBm बनेगा. So we have a SNR is equal to आपके पास. अच्छा, जब dBm को dBm से माइनस करेंगे तो आंसर dBm नहीं आएगा, आंसर इस dB आएगा. dB. ये इस पे मैंने काफी आप लोगों को शायद लेक्चर दिया हुआ है. जी क्या कह रहे हैं सर? समझ नहीं सर. dB है dBm. अच्छा, इसके ऊपर मैंने लेक्चर एक पूरा दिया है. पता नहीं आप उस क्लास में नहीं होंगे या जो भी है. बिल्कुल सर, वो इलेक्ट्रॉनिक लैब में हमने लिया था क्लास. इलेक्ट्रॉनिक लैब के अंदर लिया है. तो आप इसको किसी स्टूडेंट से रिपीट करें, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा लिखने की ज़रूरत है इसमें ना. तो हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, उसको मैं लिख कर एक बना के तो फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में. लेकिन हमजा, आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर से एक दिन पहले आपने मुझे सिर्फ मैसेज पे रिमाइंड कराना है. ठीक है सर, इंशाल्लाह. ओके जी. तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा. तो जब dBm से माइनस होगा, so that will never generate a dBm result. The answer will be dB. जैसे 1 मिलीवाट डिवाइडेड बाय 10 पावर ऑफ माइनस 10 मिलीवाट, तो इसका यूनिट क्या होगा? आंसर सर डायमेंशनलेस यूनिट नहीं होगा. यूनिट नहीं होगा. इसी तरह जब आप उसके अंदर dBm, ऊपर तो आपके पास यूनिट था ना मिलीवाट, नीचे भी मिलीवाट था. बिल्कुल. लेकिन जब ये डिवाइड हुए तो आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी आ गई. इसी तरह अगर इसको एनालॉगसली इफ वी आर गोइंग टू सी इन लॉगरिथमिक यूनिट, then what will happen that the signal power in dBm minus noise power in dBm, if it's going to be subtracted,
तो result will never give a dBm, it will give a dB. And it is said to be a सिर्फ ये identification है कि decibel logarithmic unit है, logarithmic है. It's not any unit, is a unitless quantity. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Just have to see, और next time मुझे हमजा बताएगा तो फिर मैं इसको इंक्लूड करूँगा इसके. ये मल्टीपाथ का इफेक्ट है. वी हैव अ सिग्नल देयर, इट इज फ्रॉम द, अब ये एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से मिल रहा है इसको, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था सीडीएमए के अंदर. एक ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल इस यूजर को मिला, एक किसी और बिल्डिंग से टकरा के. सो वी हैव गॉट अ 3 मल्टीपार्ट्स आर देयर, जो पीछे में हम एक्सप्लेन कर रहे थे. ओके, सो व्हाट विल बी द रिसीव पावर, जो वो कह रहा था एक स्टूडेंट की, जो रिसीव पावर है वो क्या होगी. So that receive power is directly proportional to the transmitting power that transmit from that antenna. इस एंटीना से जितनी ट्रांसमिट हुई, divided by d power of n. N is the path loss exponent. Is said to be path loss exponent. That n will have a value. इस n की क्या रेंज होती है path loss exponent की? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर. अच्छा, ठीक है जी, अब आ रही होगी ना? यस सर, अब ठीक है. ये जो n है path loss exponent. यस सर. What is the range of that path loss exponent? बताया था आप लोगों को. 1 to 6 2 सर. to 4. 2 to 2 6. से 6. 2 to 6. 2 to 6. 2 to 6. That n will be square. It means to be, it will be 2 whenever it is in a line of sight. Line of sight, जब user line of sight के अंदर होता है, so and it is in a far field. जब far field के अंदर होता है तो it is said to be value 2. लेकिन आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर मूव कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू मूव इन अ वेरी डेंस अर्बन रीजन के अंदर जब मूव करते हैं, देन व्हाट्स हैपन, दैट पाथ लॉस एक्सपोनेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज इनॉर्मसली. इज इट राइट? ज्यादा हो जाती है ना. अगर आप टावर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आपको सिग्नल बड़े साफ सुथरे मिल रहे हैं और आपके और टावर के दरमियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सो यू विल हैव एन अ वेरी गुड सिग्नल. लेकिन अगर आप टावर से दूर चले जाते हैं और दूर भी जा रहे हैं और बड़ी हाई राइज जैसे इंटीरियर सिटी के अंदर अगर आप मूव करें, एंड व्हाट्स हैपन, वी हैव गॉट अ वेरी हाई राइज स्ट्रक्चर और छोटी छोटी गलियां हैं, सो यू विल गेट, आप थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. इज इट राइट? तो वहां पे द पाथ लॉस एक्सपोनेंट इज मच हायर एंड इट विल बी 4, 5 और 6, अप टू 6 जो है वो वैल्यू हो सकती है. So receive power is directly proportional to the transmitting power. Yes, of course, जितनी ज़्यादा पावर से ट्रांसमिट होगी उतनी ज़्यादा पावर से रिसीव्ड होगी. आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे away from the tower, so your receive power is reduced. And the third factor is presented over here is said to be path loss exponent. Is it right? Okay. थोड़ा सा एक फिनोमिना जो मैं ये निचली वाली फिगर के अंदर, ये तो मैं सिर्फ ये रिसीव पावर के बारे में बता दिया कि ये किस किन चीज़ों पे. ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, d is the distance from the base station, and n is the path loss exponent, and it's depend upon the terrain of the landscape. Landscape की terrain पे depend करते, terrain. और so we have got this. ओके, थोड़ी सी इस फिनोमिना को नीचे में एक फिजिकल फिनोमिना जो फिजिक्स से रिलेटेड है, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. दिस इज हिल, ये एक पहाड़ है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दैट हिल. इस हिल के इस पहाड़ की हाइट को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ. तो जब सूरज निकलता है, सो उसकी शुआएं इस पहाड़ से होकर यहाँ कहीं पड़ती है. तो मैंने यहाँ एक छड़ी खड़ी की जिसकी टिप से इस सूरज की शुआएं टकराती हुई या उसकी बिल्कुल टिप को टच करती हो और वो जाके यहाँ पे डाई आउट होती है, यानी यहाँ पे लगती है. नाउ यू सी दैट वी हैव गॉट द 2 ट्रायंगल्स. एक तो ये बाहर की ट्रायंगल है
और एक ये दरमियान की ट्राइंगल, इज इट राइट? तो फिजिक्स के असूल हैं, इफ यू हैव गॉट एन वन ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इनटू द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के अंदर मौजूद हो, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एक ट्राइंगल ये हो गई और दूसरी ट्राइंगल बाहर की हो गई। सो यू कैन से दैट कि H1 या ये वाला जो हाइट ऑफ द हिल है इज H2 डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D2, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इज D2, और इसी तरह दैट वुड बी इक्वल टू perpendicular of the other triangle divided by the base of the other triangle, H1. So H2 divided by D2 is equal to H1 divided by D1. This is a physics phenomena. So you can find H2 will then be equal to समझ बिल्कुल भी H1. नहीं आई सर। देखिए ये एक हिल है, एक पहाड़ है, उसकी मैं हाइट मालूम करना चाहता हूँ। सूरज की शुआएं आती हैं और वो इधर मैं एक छड़ी खड़ी करता हूँ जो कि इसकी टिप को टच करती हुई यहाँ पे जमीन के ऊपर पड़ती है, इज इट राइट? इस जगह पे साया होता है, नीचे इस जगह से धूप शुरू हो जाती है। ये एक पुराना तरीका है टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल। ठीक हो गया? अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगलें नजर आ रही हैं, एक ये वाली ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल, और एक ये जो हमने छड़ी खड़ी की हुई है इसके, तो दोनों ये एक ट्राइंगल है, ये इंस्क्राइब्ड हो रही है दूसरे ट्राइंगल के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन हो, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय base, perpendicular divided by base will then be equal to this perpendicular divided by this base, H1. So this is a physics rule है। तो H2 will then be equal, तो अगर D2 पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो H2 will then be equal to H1 D2 divided by D1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब H1 is a known quantity because छड़ी की लेंथ तो मुझे पता है, और छड़ी कहाँ कितने डिस्टेंस पे रखी गई है वो भी मुझे पता है, D1 भी पता है, और D2 कितना जो आपका हिल है जितना दूर है वो भी हमें पता है। So these all are known quantities, only H2 is unknown. So the H2 we can find out by using this phenomena. ठीक है जी, इस फार्मूले से। So the same concept we are going to use to find out the received power. इस received power को मालूम करने के लिए जो आपके एक दोस्त ने सवाल भी किया था कि ये received power कैसे मालूम होगा, डिले और डिले के साथ जैसे कि हम वो रेक रिसीवर पढ़ रहे थे। So we are going to be describing this. तो आपको ये फिनोमिना पता लग गया कि how can we find out the height of this so that we can find out the value of the received power as well. दो तीन चीजें जो कि आपको समझनी है। जिस तरह मैंने यहाँ छड़ी को एक रेफरेंस बना करके we are going to find out the height of that hill. So we are going to find out the receive power at the receiver. Receiver पे receive power करना चाहते हैं, and we take it as an reference distance. एक पावर को हम फाइंड आउट करते हैं विद सम रेफरेंस, किसी जिसको हम क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस कहते हैं। ये आपके पास बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन के बिल्कुल करीब ही एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि दैट पॉइंट इज इन द फार फील्ड विच इज सेड टू बी फ्रॉनहोफर डिफरेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। पता नहीं ये मुझे एक्सप्लेन किया है आपको या नहीं किया। सो ये आप बेस स्टेशन के बिल्कुल करीब खड़े हैं और आप एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जिस पे आप ये कह सकते हैं कि दिस इज, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल लाइन ऑफ साइट है, जहां पे रिसीव पावर जो होती है, रिसीव पावर वो बराबर होगी PT यानी ट्रांसमिटिंग पावर डिवाइड बाय D स्क्वायर के बराबर होगी, जहां पे जो आपका पाथ लास्ट एक्सपोनेंट है वो 2 के बराबर होता है। वैसा पॉइंट बेस स्टेशन से नज़दीक ऐसी लोकेशन जहां के
आपका जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट है दैट इज 2, उसको हम कहते हैं क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस कहते हैं। अब जरा सा फिर से इसको सुनिए, ये टावर है, टावर से आप मूव करते रहते हैं, आपको जो रिसीव पावर टावर से मिल रही होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ये लफ्ज आप सुन लेंगे। जब हम मूव करते हैं, बिल्कुल टावर के करीब थे और इससे मूव करके आगे जा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं, तो रिसीव पावर हमें इंक्रीज होती जाती है। एक पॉइंट आता है कि बस इंक्रीज पावर, हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम मिल जाए, उसको हम क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस कहते हैं। जो ही हम इससे आगे जाते हैं तो फिर आपकी रिसीव पावर कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड आप जितना भी दूर जाते रहेंगे सो रिसीव पावर आपकी कम होती जाएगी। तो वो पॉइंट, एट दैट पॉइंट जहां से हमें टावर से मैक्सिमम पावर रिसीव हो रही है, दिस इज सेड टू बी क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस, उसको हम क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस कहते हैं। एंड दैट इज इन अ फार फील्ड, FAR, फार फील्ड के अंदर मौजूद होती है। यू जस्ट हैव टू बी फार फील्ड और नियर फील्ड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो यू जस्ट हैव टू बी नोन दैट कि ये फार फील्ड के अंदर, एंड दिस इज अ मैक्स। माइक्रो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये तकरीबन 1 मीटर के करीब, 1 से 10 मीटर तक के करीब होती है, ठीक है। और मैक्रो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब होती है, 1 किलोमीटर के करीब, ठीक है जी। तो हम चूंकि माइक्रो सेलुलर स्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये 1 मीटर के अंदर 1 से 10 मीटर के दरमियान में हम लिया करेंगे। हम इस पॉइंट के ऊपर उस पावर जो कि हमें मैक्सिमम मिल रही है उसको हम P0 कहते हैं, उसको P0। एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? कोई आवाज नहीं आ रही मुझे? बिल्कुल यस सर। यस सर, यस सर आपके पास लेकिन ये जब यस सर। जी सर ये ये जब ट्रांसमिट होती है तो इंक्रीज कैसे होती है, जब जिस आपने कहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है सर? ठीक है, देखें हम टावर के बिल्कुल नीचे खड़े हैं ना, तो यस सर। टावर से जब आपकी एनर्जी रेडिएट होती है, पावर रेडिएट होती है ना, तो वो यस सर। बिल्कुल नीचे, तो डायरेक्ट नीचे तो नहीं आती ना, बिल्कुल मतलब है कि उसके साथ नीचे तो नहीं आती, वो तो जरा से स्कैटर्ड होती है। यस सर। तो आप जब टावर से जरा से दूर जाने लगते हैं, वो किसी एंगल से गिर रही होती है ना, तो एंगल पे एक अच्छी फ्रीक्वेंसी हमें अच्छी पावर मिल रही होती है। तो आप जब दूर जाते रहते हैं उससे, तो क्या होती है कि आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि उसमें मैक्सिमम पावर आपको मिल जाती है। इज इट राइट? एंड व्हेनेवर यू अगेन मूव अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आपकी पावर फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ पॉइंट जिसको हम क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस कहते हैं। ये हमारे लिए रेफरेंस होगा। जिस तरह की वो छड़ी हमने नहीं खड़ी कर दी थी, वो छड़ी जो है वो ये पॉइंट है जी, ठीक है जी। यहाँ पे जो पावर होगी, ये जो पावर है वो छड़ी है, ठीक है जी, वो हाइट सर है। इसके हाइट तो हमें पता होगा ना सर जी ये हाइट तो हमें मालूम होगा ना, ये जो क्या पॉइंट चीज? है सर, ये जो ये पॉइंट है पॉइंट तो सर, हाइट नहीं है ना, ये तो हाइट नहीं, ये तो मैं सिर्फ पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जहां पे मुझे पावर, वहां तो मैं छड़ी के एग्जांपल दे रहा था ना, ठीक तो है। यहाँ पे तो मैं हाइट को पावर से रिलेट करूँ ना, पावर जितनी बड़ी होगी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर मुझे यहाँ ठीक है मिलेगी। सर, ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब let's suppose the power at that particular point I am going to be identified it with a P naught, okay? So the P naught will then be directly proportional to the transmitting power, यानी कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही है टू द रेडिएटेड एंटीना से। ऐसी बात है, जितनी as much as power radiated by that base station, that much power will be received at that particular point. ये तो एक बात है। So the P naught is directly proportional to the transmitting power from the radiating antenna. Secondly, it would be inversely proportional to that distance, and that distance is represented, जो point यहाँ पे at that particular distance, that distance will then be equal to D naught. So you see that the received power at that particular point will be directly proportional to the transmitting power and inversely proportional to D naught power of N. तो बस ये बातें आप याद रखें। P naught specifically is a symbol used for the received maximum power and is at a close in reference distance of D naught. तो P naught और D naught को हम हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। Okay, if I am going to be remove that, सर ये N2 होगा सर, ये आपने कहा जी N2 होगा, यहाँ पे N2 है, लेकिन मैंने यहाँ पे N ही इस्तेमाल किया फॉर जनरलाइजेशन, ठीक है।
सो वी हैव गॉट, क्योंकि आप जो भी मूव करते रहते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, ऑनवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आगे आप जितने भी जाएंगे द वैल्यू ऑफ द एन इज नाउ गोइंग टू बी चेंज होती रहती है। मतलब आप 2.1 भी हो जाएगी, 2.2 भी होती रहेगी, 4 5 एंड वट एवर इज नाउ गोइंग टू बी चेंज, वो चेंज होती रहेगी। तो मैंने उसको चले अभी इसको एन ही लिखा, सो वी सेड टू बी, हालांकि दैट इज सेड टू बी, लेकिन इसको हम जनरलाइज टर्म के अंदर ही लेते हैं। So the P naught is equal to constant proportionality constant multiplied by PT divided by D naught power of n. That's fine. Now let's suppose what will be the power received at that particular, मैं एक यूजर है वो यहाँ पे खड़ा, उसको कितनी पावर रिसीव हो रही है। So the received power is directly proportional, is equal to वही तरीका है ट्रांसमिटिंग पावर डिवाइड बाय द डी पावर ऑफ n। लेकिन यहाँ पे डी नॉट नहीं है, यू सी दैट वी डोंट हैव एन डी नॉट। डी नॉट तो वो क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस का डिस्टेंस था, जो कि माइक्रो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर दैट इज 1 मीटर, वो 1 मीटर का था। So that we have the received power at that point will then be equal to constant this. Now we are going to be dividing this, जिस तरह कि हमने वहां पे किया, वो जो छड़ी रखी, and then we are going to be एक दूसरे को, so the received power if divided by P naught, तो receive power का ये constant this और P naught का ये, so is going to be divided there. So the constant will be cancelled, the transmitting power will be cancelled, so we have the receive power divided by P naught will then be equal to this. ये इसके बराबर हो गया। सो द रिसीव पावर विल देन बी इक्वल टू P नॉट D नॉट। तो अब आपका जो रिसीव पावर है इज विद रेफरेंस टू द क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस पावर एट क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस D नॉट के हवाले से अब जाना जाएगा। सो वी हैव गॉट द रिसीव पावर इज दिस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर इक्वेशन तो समझ आ गई सर, लेकिन इसका मतलब सर ये किस लिए हमने किया सर? ये इसलिए किया ना कि हमने अब रिसीव पावर कहीं भी जो रिसीव पावर हो रही है फ्रॉम बेस स्टेशन, उसको मैंने रिलेट कर दिया मैक्सिमम पावर से जहां हो सकती थी, उससे मैंने इसको रिलेट किया। अब हम ये पीटी के चक्कर से निकल गए, अब हम इस क्लोज इन रेफरेंस, उस रेफरेंस से हम रिसीव पावर को कैलकुलेट किया करेंगे। वी कैन कैलकुलेट द रिसीव पावर इक्वल टू विद दिस रेफरेंस पी नॉट से एट अ क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस के ऊपर। सो वी कैन कैलकुलेट पी आर बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू मे हैव ना, देखिए जितनी मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, सो देयर इज अ ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, सो देयर इज नो इशू विद द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, यू कैन फाइंड इट। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहता हूँ कि वी हैव अ पाथ लॉस एक्सपोनेंट इन सम रीजन इज इक्वल टू 4, इज n इज इक्वल टू 4, एंड द टोटल एरिया ऑफ द रीजन where I want to install or I want to design a cellular system, जहाँ मैं cellular system को install करना चाहता हूँ या cellular system को design करना चाहता हूँ, किस एरिया के अंदर? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस रीजन के अंदर we have got the path loss exponent is equal to 4. So the entire area that would be divided among the smaller regions में divide होगा ना, वो जो सेल्स बनेंगे ना, सेल्स बनेंगे, क्लस्टर्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे, और ये सारा 10,000 किलोमीटर का जो रीजन है, ये इसके अंदर हमने सेल्स बनाने हैं, ठीक है। एक ऑपरेटिंग कंपनी है, उन्होंने जो है ना इंस्टॉलेशन करनी है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उस कंपनी ने अपने मोबाइल्स भी तकसीम किए हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे मोबाइल से लगेंगे, उनकी सेंसिटिविटी लेवल है -100 dBm, -100 dBm। समझने की जरूरत है। सेंसिटिविटी वी मीन टू बी योर मोबाइल इज सेंसिटिव इनफ दैट इट कैन कैच और कैन रिकॉग्नाइज द सिग्नल्स अप टू a -100 dBm। अगर आपके पास सिग्नल -101 dBm का आएगा तो आपका मोबाइल जो है वो सिग्नल कैच नहीं कर सकेगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा।
So this is said to be a sensitivity. This is the sensitivity level of the mobile. Are you getting that definition? Yes, sir. Yes, sir. मिलीवाट का सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 0 सर मिलीवाट, बीच में आवाज रुकी थी सर, ये दोबारा से करें। अच्छा, सेंसिटिविटी को मैं डिफाइन कर रहा था। सेंसिटिविटी वी मीन टू बी कि आपका मोबाइल कितने लो लेवल पावर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मैंने यहाँ पे दिया -100 dBm, या मैं कहता हूँ कि 1 मिलीवाट के सिग्नल को वो कैच कर सकता है। बस 1 मिलीवाट से अगर 0.8 मिलीवाट हो गया तो वो सिग्नल मेरा मोबाइल जो है वो रिसीव नहीं कर सकेगा। जैसे कि आपकी जो RSSI आ रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर, अब वो बहुत कम हो जाते हैं तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होती, आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। सो योर सेंसिटिविटी लेवल इतना ही था, वो ड्रॉप हो गया एंड इट्स द फर्दर द कन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। इज इट राइट? ये सेंसिटिविटी लेवल ऑफ द मोबाइल किस पॉइंट के इर्द गिर्द, किस पॉइंट में होनी चाहिए? जब if a user stand right at the radius of the cell, जब radius of the cell पे पहुंचे बिल्कुल आखिर में, यानी कि उस सेल के बिल्कुल किसी कोने में पहुंच गया, तो वहां पे -100 dBm का सिग्नल एटलीस्ट मिलना चाहिए उसे। You got my point? If you are going to be near to the base station, as long as you are going to be near to the base station, तो आपको अच्छा सिग्नल मिलना चाहिए ना, मिलता है। तो सबसे बुरा सिग्नल आपको कहाँ मिलना चाहिए? सबसे बुरा आपको कहाँ मिलेगा? Whenever आप सेल के बिल्कुल एक्सट्रीम यानी रेडियस के ऊपर खड़े, at the extreme level, so that at that particular point your mobile should at least catch a signal of -100 dBm. Is it right? So that this is said to be sensitivity level of your mobile. What is P naught? P naught is a close-in reference power, and it is already given to you is a 10 dBm. और किस पॉइंट पे? D naught is equal to 10 मीटर क्यूब। आपसे वो कह रहे हैं फाइंड कितने बेस स्टेशन आपको चाहिए उस रीजन के अंदर, कितने बेस स्टेशंस आपको लगाने पड़ेंगे इस रीजन। इसका मतलब है कितने बेस स्टेशंस का मतलब है कि ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास हैं, एंड दैट इज बेसिकली इंस्टॉल्ड एट दी सेंट्रली एक्साइटेड है, यानी सेल के बिल्कुल दरमियान में लगे हुए हैं। सो दिस इज साइड टू बी अ सेंट्रली एक्साइटेड। So it is an centrally excited. अच्छा, एरिया आप देखें, एरिया ऑफ द सेल किसके बराबर है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेल? We already derived that particular expression Yes, and we sir, stated that the 2.59 area square. of the, yes, it's a 2.59 r square, or it is then equal to a 3 √ 3 divided by 2 r square. So if you know the area of the cell, अगर आप सेल के एरिया को मालूम कर लें, आपका गोल क्या है? What is the goal of your you to find out which particular term? You need to find out the area of the cell. अगर पूरे एरिया को, यानी जो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है, उसको आप एक एरिया ऑफ द सेल पे डिवाइड कर दें तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है ना? अगर आप कहें कि यार मेरा तो एक कनाल का घर है, वो घर, और इस एक कनाल के अंदर मैंने सारे कमरे जुड़े हुए एक ही साइज के बनाए हुए हैं, ठीक है ना? 20 मरले का घर है, और एक मरले की और एक कमरे में 2 मरले आते हैं। एक जो कमरा मैंने बनाया है, कितने? 2 मरले आते हैं। तो कितने कमरे होंगे 20 मरलों में? तो 20 मरले डिवाइड बाय 2 मरलास, इट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ rooms in that region is total of 20.
सॉरी 10 आ जाएंगे. So इसी तरह if you have got in a total area, if you are going to be divided the area of a single cell, it will give you a total number of the cells. आपको मिल जाएगा. So this is a goal. We are going to find out the total number of cells. Total number of cells. The number of cells will then be equal to 10,000 square kilometer divided by area of a single cell. The question is this: how you will find the area of a single cell? तो एरिया ऑफ अ सिंगल सेल AC आपको तभी divided by मालूम 6. होगा कि जब आपको आर स्क्वायर पता हो. आर هذا هو سر ولا لا وش. सर आपकी आवाज़ चली गई. सर आवाज़ नहीं आ रही है. क्यों मिनट राजी सर राजी. أها सही. सर هذا restart شو لك صبر راضي. recording must have بس إذا أو recording must stop. system ये off شو راضي वो message. that time ऊपर आ जाए. أو time पूरे दिन بس راضي تمام كده. أو كنا يا شيء grande الشيء confusing شوي عاد السر أو ويلشي كنا ما the 104 څنګه راتلو the number of cell کې جو 124 100 10,000 divided by 40. first. सर से पूछ लो दोबारा कि समझ नहीं आई इसकी. وين متى equation متى وين ما هذا अच्छा برا सर. अफनान से पूछ लो, उसको आता होगा. ولا नेट का हेलो हेलो अलग क्लास खत्म हो गया ना. जो तो गोरा खत्म खत्म है जाएगा मेरा खत्म ही किया ना. Untitled Chapter में चलते हैं. तो पोस्ट नहीं करना क्वेश्चन लेक्चर बनने Malas. Pandemista. दीपक जी को ये तो मुनी हिस्ट्री वाले चित्र लगा पैदा को लोड़ी Preda, muy rollera, preda. لك recording start थे सब सब कहें. यार द पश्तोनो सीजन रागले ले कम जो मैं खपो बोके. हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था. जी सर आप जी सर आपकी वो आवाज़ हाँ कनेक्शन तक हमने किया. आवाज़ नहीं आ रही. हमने कहाँ तक किया था? सर ये न्यूमेरिकल एरिया ऑफ द सेल फाइंड कर रहे थे. एरिया एरिया ऑफ द सेल. हमने एरिया ऑफ द सेल मालूम Single कर लिया. cell. एंड यू आर नो सर गोइंग. नहीं फाइंड ओके किया ये सर. ओपीआर को भी डिस्कस कर लिया था. नो ओके ओके ओके. सर Okay. वो So slides you see that we have to find out R actually. slide आपको नहीं R है मालूम सर. करना है ना. Then you can सर find सर out area of स्लाइड the cell. स्क्रीन नहीं है स्लाइड सर. शो नहीं. Slide नहीं हो रही है. Okay. नो सर वो प्रेजेंट कर. Let me again present.
अब आ गई है? यस सर। जी सर आ गई। ठीक हो गया। यस सर। Now you see that you have to find out actually the r, the radius of the cell, then you can find out the area of the cell. Is it right? अब ये r जो है, this is the distance from the base station at the edge of the base station, edge of the cell. Cell की edge के ऊपर होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे कम सिग्नल जो कि ये वाला सिग्नल है, रिसीव पावर जो है वो -100 dBm का है। नाउ हाउ यू कैन फाइंड दैट r, ये r कैसे मालूम करेंगे? So we already have derived that expression there. The receive power is equal to P naught D naught divided by D power of n. You know P naught, you know D naught, you know receive power as well. Receive power भी आपको पता है। Receive power क्या है? Sensitivity level है, जो कि आपका रेडियस के ऊपर होगा। तो अगर -100 dBm है तो ये जो डिस्टेंस है ये r के बराबर हो जाएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट सेंसिटिविटी एट दैट पर्टिकुलर रेडियस. So this is r. So only unknown in this expression is then r. You just नजर have नहीं to आ रहा find सर। out the r in this. जी नजर नहीं आ रहा सर, ये स्लाइड क्या बहुत नहीं हो रहा? नजर नहीं आ रहा सर, ये स्लाइड। ये खैर है, आप देख equation लेंगे है उसके अंदर। ये जो मैंने पी आर का फार्मूला लिखा है, यू जस्ट हैव, आपने अगर राइट डाउन लिखा है, अगर आपने किया है, लिखा हुआ है, तो यू कैन हैव। हाँ सही सर। सो जो रिसीव पावर जो है वो ऑलरेडी -100 dBm है। पी नॉट यू नो, डी नॉट आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड दैट डी, दैट डी विल बिकम आर, क्योंकि आपका तो सेंसिटिविटी लेवल यहाँ पे डाल दिया आपने रिसीव पावर का। सो यू कैन फाइंड आर बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप कर सकते हैं। सो once you have got r, you put it over there, so you will get the area of the cell, and then you can find the number of cells by using total area divided by an area of a single cell. That would be, let's suppose कि आपके पास आंसर आ गया 100.4। 100.4, अब आपको 100 सेल्स लगाने हैं कि 101 लगाने हैं? 0.4 सेल तो नहीं हो सकता ना। So you will like to use as in a 101 cell, because if you have in 100 cells, so 0.4 of the cell region will be uncovered रहेगा, so that you need to install 101 cells rather than 100 cells. Okay, so you have an assignment to solve this problem. इस problem को solve करें 10,000 डिवाइड बाय क्या है in सर? detail. जी, divided by 10,000 AC is the area of a cell. अच्छा, सही है। AC area of a cell है ना, area of the cell, तो आपको number of cells मिल जाएंगे। You need to solve this as an assignment. इस assignment के अंदर you have to solve this problem. इस problem को detail solve करें। detail solve में कि हर एक step के ऊपर वो argument करें और बताएं कि जी ये क्या scenario है and whatever is this. ठीक है? ठीक है So you सर। just have सर to ये solve this and जी सर ये पिछला वाला स्लाइड में जो इक्वेशन है ये जरा दोबारा गो थ्रू करें सर, और फिर उसमें अच्छा, इसमें यह है कि मैंने कहा कि जी यहाँ से जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी पावर इंक्रीज होती जा रही है। एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे पावर मैक्सिमम, उसके बाद आप जब इस तरफ आते हैं तो दोबारा पावर रिड्यूस होती जाती है। ये हमारा क्लोज इन रेफरेंस डिस्टेंस है। ठीक है जी, इसके ऊपर हमारी जो पावर होती है वो पी नॉट, सो दैट वुड बी टेकन एज रेफरेंस। सो पी नॉट विल देन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जाहिर है जब जितनी पावर ट्रांसमिट हो रही होगी तो ज़्यादा आपको पी नॉट मिलेगी, और डिस्टेंस उसका डी नॉट पावर ऑफ एन है, तो पी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट पी टी डी। इसी तरह इस पॉइंट पे जो रिसीव पावर होगी वो इक्वल होगी कांस्टेंट पी टी। वही बात कि यहाँ से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट हो रही है तो ज़्यादा मिलेगी, डिवाइड बाई डी एन हो जाएगी। और पी आर को पी नॉट के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया है, तो आई विल हैव अनदर पी टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी, रिसीव पावर इज इक्वल टू पी नॉट डी नॉट डिवाइड बाई डी पावर ऑफ एन। Now you see that you are independent of the transmitting power. Transmitting power से आप independent हो गए. You have now closed in reference power and closed in reference distance there, and the path loss experiment. ठीक है जी, ये receive power हमारे पास आ गई। So this is enough for today. सर इसके बाद वाले स्लाइड में सर ये 1 dBm में गए होने और 1 मीटर में गए होने, सर वो जरा देख ले सर इसके बाद वाले स्लाइड में। ये स्लाइड हाँ ये सर ये डी नॉट मीटर में गए होने और पी नॉट सर ये वाला। अच्छा ठीक है, एक पावर है और एक डिस्टेंस है। ठीक है सर, वैसा ये लिख ले सर हम ये क्वेश्चन। ये डी नॉट मीटर में गिवन है और क्या, और दूसरा सर डीबीएम में गए होने वो पावर है। ठीक है सर, समझ आ गई है सर।
वो पावर है, ठीक, सही है। यस तो आपने देखें इसमें बड़ी एहतियात से करनी है। जब आप डीबीएम में काम कर रहे होंगे तो फिर आप लॉगरिथमिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 10 मीटर्स को अगर आप वहाँ पे इस पावर के अंदर डाल रहे हैं तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये कोई डीबीएम तो नहीं है। अब यहाँ पे अब -100 डीबीएम तो नहीं डाल सकते आप, यहाँ पे आपको यस सर, कन्वर्ट तो वो कन्वर्ट करना करें। पड़ेगा माइनस डीबीएम इनटू मिलीवाट्स के अंदर। मिलीवाट्स के अंदर आएगा, पी नॉट भी मिलीवाट्स के अंदर आएगा, तो आप इसको लीनियर के अंदर कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि -100 डीबीएम यहाँ डाल दिया आपने, सर वो इस तो इक्वेशन में डीबीएम अवल पहले कन्वर्ट करेंगे सर, कन्वर्ट करेंगे ना आप। ये तो लीनियर तो 10 इक्वेशन है ना, पावर, ये तो कोई वो ठीक तो है सर, इक्वेशन नहीं है। ये तो मैंने सारी लीनियर कैलकुलेशंस की हैं ऊपर, देखे हैं आपने, तो दिस इज अ लीनियर यस सर, इक्वेशन। अगर आप इसको डीबीएम में करना चाहते हैं तो फिर आप कहते हैं रिसीव पावर इन डीबीएम इज इक्वल टू पी नॉट इन डीबीएम प्लस, एक मिनट ठहरे, आगे एक स्लाइड में है भी, मैं बताता हूँ आपको। ये आ गया जी आपके पास, ये मैंने डिराइव किया, पी आर इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाई यस डी सर, नॉट पावर ऑफ माइनस एन। ये माइनस एन इसलिए किया कि डी नॉट को नीचे ले आए और डी को ऊपर ले आए, तो ये माइनस एन है। तो अगर आप ठीक है इसको सर, लॉगरिथमिक के अंदर देखेंगे तो पी आर इन डी, अब आप यहाँ -100 डाल सकते हैं इसमें, फिर ठीक है इज सर, इक्वल टू पी नॉट दिस, और ये माइनस एन जब नीचे आता है तो -10n log ऑफ डी डिवाइड बाई डी नॉट, वो लॉगरिथमिक रूल्स है यहाँ पे। अब आप इसके अंदर डीबीएम की वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सर, सर ये सर ठीक तो है, पी आर फाइन हो जाएगी ना सर, तो आपने कहा सर हमें आर पी आर नहीं फाइंड हो, पी आर तो हमें मौजूद है, यही तो आपको कह रहा हूँ, पी पीआर तो आर गिवन आपके है। पास अच्छा गिवन है। गिवन। पी आर इज द सेंसिटिविटी लेवल that is on -100 dBm. This is the received power. Sensitivity of the mobile we mean to be, this is the minimum received power at some point. वो मिनिमम रिसीव पावर कहाँ होनी चाहिए? एट दी एज, यानी कि जितना दूर हो बेस स्टेशन से, दूर कितना हो सकता है सेल के अंदर, वो उसकी एज के ऊपर हो सकता है, यानी उसकी रेडियस के ऊपर हो सकता है, और तो कहीं नहीं हो सकता। So that is a -100 dBm. This is the receive power is given to you. P not given है, D not given है, N आपको given है, ओनली द आर इज नीडेड देयर। उस आर को मालूम करने के लिए आपने वो प्रोसीजर किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस ले लें सर, वो लिए अटेंडेंस वो तो ले हमारे लिया, वास्ते थे, अटेंडेंस लिए। ठीक है, ठीक है, बी ठीक इन है सर, टाइम, ओके। ओके सर, हमजा देख डी फाइन होगा ना, दैट पी आर इक्वल टू पी नॉट डी नॉट डिवाइड बाय डी। आर बाबा के, हाँ डी और आर या विषय है, डी ओ आर यो शे बिल्कुल فهذا خبركم हाँ यार, دا ये मची नुमानुल्लाह कौन है जी? नुमानुल्लाह कौन है? सर जमंगा नवाला ग्रुप वाले सर। तो इसकी ड्राइव में क्यों सेव होती है ये? सर दा इसका ऑटोमेटिकली पहले ज्वाइन किया था। शायद लिंक फ्लैट सर। सर नहीं, ये ये जो पहले पहले लिखा हुआ आता है है, द रिकॉर्डिंग विल बी सेव्ड इन नुमानुल्लाह's ड्राइव, ये क्यों? सर ये जो पहले आता है मेरे ख्याल से नहीं उसके नहीं ड्राइव नहीं, में पहले जाता है। पहले तो कासिम आया था, पहले कासिम था फिर मैं आया था, लेकिन ये ये क्या, ऑटोमेटिकली पता नहीं सर ये लिंक कहीं चला जाता है। नुमान को सबको फिर शेयर करे ना, ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता ना। ठीक है सर, नुमान को मैं नुमान उसे कहो कि वो क्लास क्लास रूम के अंदर डाले इसको। ठीक है सर। जी सर।